Hi, good evening, everybody. Good evening. Hi, Dawal. Good evening. Looks like you are at home today. Everybody's at home, right? But looks like you are free today. Hi, everybody. Very warm welcome to day 5. Hello, Rajni. Good evening. Thank you for sharing the post every day with your teams and your groups. Hello, Nishad. Yes, Dawal. I saw that you did a live session today. Hello, Hemanji. Good. We need to use all our knowledge and share it with the world. This is the time to do it. Hello, Kamlesh ji. Good evening. Nice to see all of you. Hello, Ramesh ji, Beena. So we'll just wait for about 2 minutes and then we'll get started. So while we're waiting on the other folks, hello, Pradeep ji. I'd like to hear from you, your experiences. How is everybody doing so far? I hope you're able to have more productive days, better days, and able to use your time more effectively. So it'll be nice to hear from some of you how you're feeling. Okay, hello Kanchanji. Good evening, Rajni. Yes, Beena, thank you so much. Beena says she's feeling much more positive. Pradeep Berry says, I've been visualizing coronavirus going. Okay, the comments are just going fast, so I'm not able to read the full comments. Rajni says, top of the world. Days are more pleasant and easygoing despite the lockdown. That is Shravati saying this. Hello, Joy. Hello, Sunil ji. Manish. Good evening. Okay, we'll just wait for another 1 minute. Hemanji is saying very peaceful and relaxing night after the meditation, so the day was great. Good evening, Sushmita ji. Vinod, how are you? Nice to see you. Ramesh ji says getting used to the isolation. Yeah, we just become comfortable and we start getting used to situations. We're all getting uncomfortable and still being comfortable and being uncomfortable. I think that's the best part. Hello, Kaushiki, Deepak ji. Okay, great. So thank you once again, and please accept my sincerest gratitude and thank you to each one of you for being here every evening. This is what keeps me inspired to keep doing these sessions, because if it is benefiting you, then it just inspires me more and more to be here and to share some of my thoughts with all of you every day. Okay.
And yeah, Joy says I'm able to focus the good thing with my child. Okay, he's able to spend good time. Good. So what we're going to do is शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू दैट कल जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, तो मैंने फेसबुक पेज के ऊपर सारे मेडिटेशंस एंड ऑडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। तो आप वहाँ पे देखेंगे गूगल ड्राइव का लिंक है, और वहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे गूगल ड्राइव पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको 4 ऑडियोज़ मिलेंगे। सबसे पहले एक ऑडियो है जिसका नाम है प्रेयर ऑफ माइंड, मन की प्रार्थना। अब ये प्रेयर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने सेल फोन में कॉपी कर लीजिए। और प्रेयर ऑफ माइंड को आपको रोज़ सुनना है, रोज़ सुनना है। प्रेयर ऑफ माइंड इज़ लाइक एन एंटीवायरस। जैसे कैसे कंप्यूटर में वायरस घुस जाता है तो हम एंटीवायरस लोड करते हैं, उससे क्या होता है कि कभी कंप्यूटर में वायरस घुसता नहीं है। तो प्रेयर ऑफ माइंड एक ऐसी प्रार्थना है जो मेरे एक गुरु ने बनाई है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई गुरु फॉर दैट। तो वो प्रार्थना से क्या होता है कि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है और हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो उस प्रेयर को रोज़ करिए, और अगले कुछ दिन तो हमारे पास थोड़ा समय है तो हम उसको कर सकते हैं, और उसको एक हैबिट बना लीजिए। जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स प्रेयर को यूज़ करते हैं उनको बहुत बेनिफिट हुआ है। उन्होंने देखा है कि रुके हुए काम होने लगते हैं, जो रिश्तों में तनाव था तो वो तनाव ख़त्म होने लगता है। बहुत सारी चीज़ें जो उनके लाइफ में नहीं हो रही थी वो होने लगती है। तो इस प्रेयर को ज़रूर सुनिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो यू कैन डाउनलोड बोथ द वर्जन्स एंड देन यू कैन शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज यू वांट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर मैंने आपके साथ में एक रिलैक्सेशन का ऑडियो भी शेयर किया हुआ है। वो रिलैक्सेशन ऑडियो जो है उससे आप डीप अल्फ़ा स्टेट में जा सकते हैं। तो हमने 4-5 दिन से जो मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हम मेडिटेशन में जाने के बाद मैं आपको बोलता हूँ कि हम अब अल्फ़ा अवस्था में पहुँच चुके हैं। तो अल्फ़ा अवस्था एक बहुत ही गहरी अवस्था है जहाँ हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाते हैं। तो उस अवस्था में जाने के लिए मैंने एक रिलैक्सेशन का ऑडियो भी वहाँ पे दिया है, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो उसको भी कॉपी कर लीजिए अपने सेल फोन में। एंड वेन एवर यू फील लाइक टेकिंग डीप रिलैक्सेशन, प्लीज़ यूज़ दैट ऑडियो। उस ऑडियो को यूज़ करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। कोई गोल, आपका कोई इंपॉर्टेंट गोल होगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, तो उस रिलैक्सेशन ऑडियो को यूज़ करके हम अपने गोल्स की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। ओके। तीसरा एक ऑडियो है जिसका नाम है पावर नैप। पावर नैप क्या होता है? सपोज़ आपके पास सोने का समय नहीं है, अभी फ़िलहाल तो हमारे पास है समय, तो हम थोड़ा आराम भी कर सकते हैं दिन में। लेकिन जब हम बहुत बिजी होते हैं तो बीच में अगर ज़रा भी समय नहीं है तो आपको क्या करना है, 10 मिनट निकाल करके उस प्रेयर को सुनना है। और जैसे आप सुनेंगे 10 मिनट में ही आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको 2 घंटे की नींद मिली हो। इसलिए दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ पावर नैप। पावर नैप इज़ एन ऑडियो विच विल हेल्प यू टू गेट 2 hours ऑफ स्लीप इन 10 minutes. 2 hours of sleep in 10 minutes. So isn't that wonderful? That is actually very good for students. It is good for people who are working very long hours. Some people are working on computers continuously. So my suggestion is that you should take a power nap every 3 to 4 hours. You know, like 10 minutes थोड़ा बीच में ब्रेक ले करके अपने माइंड को completely relax करके 10 minutes में आप बाहर आएंगे, आपको लगेगा 2 घंटे की नींद ली है, so you can do another couple of 3-4 hours of work once again. So very useful for students, very useful for people who are working long stretched hours, even for homemakers when they're working throughout the morning, then in the afternoon, if they don't have enough time, they can take a power nap. So please use that also. And there is a fourth audio which is called the Daily Rituals. Daily Rituals is an audio which you can play in the morning. So it will help you do the gratitude and forgiveness and बहुत सारे जो morning processes जो मैंने आपको बताए थे, अगर आप अपने आप से नहीं करना चाहते हो तो सिर्फ उस ऑडियो को सुनिए, तो सारे प्रोसेसेस आप उसमें कंप्लीट कर सकते हो। सो दीज आर द 4 ऑडियोज़ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। देर इज़ ऑल्सो वन कॉन्सेंट्रेशन सर्कल, उसका एक PDF फाइल दिया है मैंने वहाँ पे, तो उसको आप डाउनलोड करके उसको, अगर आप प्रिंटिंग फैसिलिटी है घर पे तो आप प्रिंट करके अपने सॉफ्ट बोर्ड पे लगा दीजिए। जो लोगों को फोकस और कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम्स है तो उस कॉन्सेंट्रेशन सर्कल को उसके सेंटर में देख करके 2 या 3 मिनट उसके ऊपर ध्यान देके देखना है और फिर अपना काम शुरू करना है। सो द कॉन्सेंट्रेशन सर्कल हेल्प्स यू इन इम्प्रूविंग योर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि कल किसी ने मुझे पूछा था, सर फोकस कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो एक तो कॉन्सेंट्रेशन सर्कल को यूज़ करिए,
और दूसरा, आप ये ध्यान मुद्रा अगर आप करेंगे, just joining the thumb and the index finger together for both your hands or even one hand, your brain nerves will automatically calm down and you will be able to focus a little more. Okay. और कोई भी काम करने से पहले 3 मिनट गहरी सांसें लेकर के अगर आप अपना काम शुरू करेंगे तो हमेशा काम प्रोडक्टिव होगा. यू विल बी एबल टू डू इट मच बेटर. ओके. Sudarshan says, where is the PDF? It is there in the Google Drive itself. The link which I have given on the Facebook page, आप उस लिंक पे अंदर जाइए and you will be able to find it. Okay. And if still you are not able to find it, then do send us a message and we will make it available to all of you. Okay. Great. So that is about all the meditations, and we have also included an evening meditation on the Facebook page. तो उसको हमें 10 बजे रोज़ रात को करना है. तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग सब लाइव करते हैं, बट आफ्टर वी फिनिश आर 21 days, मे बी यू कैन कीप डूइंग दैट ऑडियो एंड at 10 o'clock sharp in the night, so that we bring our earth back to normal very quickly. It is basically a meditation which unleashes the power of collective consciousness. जब हज़ारों लोग उस प्रेयर को एक साथ में करते हैं तो उसका एक अलग ही पावर होता है जिससे कि हमें जल्दी हीलिंग हो जाती है प्लैनेट के अंदर. ओके. सो ये सारे रिसोर्सेज को आप प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको अच्छे से इस्तेमाल करिए, सो दैट यू कैन मेक कीप योर माइंड्स ऑलवेज काम, always positive, always happy, and all of that. Okay, great. So today we're going to understand, आज हम एक बहुत ही important law को सीखेंगे. the nature, कुदरत के बहुत सारे नियम हैं, जैसे law of gravitation. Okay, law of gravitation के बारे में कितने लोगों ने सुना है और क्या कहता है? What does law of gravitation say? अगर एक दो आंसर भी मिल जाए तो it'll be great. What does law of gravitation say? Okay, I think I'm getting an answers a little slow, so probably it's not going through. But law of gravitation is very simple. Law of gravitation says what goes up comes down. जो चीज़ ऊपर जाती है फिर से नीचे आती है. तो ये नियम जो है वो सबके लिए लागू पड़ता है, राइट? समझो कोई भी इंसान 9 माले पे जाके जंप मारेगा तो क्या होगा? नीचे गिरेगा. कोई फ़र्क पड़ता है कि कौन सा इंसान जंप मार रहा है? लाइक सपोज द पर्सन सेज मेरे पास 100 करोड़ रुपया है, मैं गिरना नहीं चाहिए, और ऊपर से जाके जंप मारेगा तो क्या होगा? वो भी नीचे ही गिरेगा. या बीना जी सेज व्हाट गोज अप हैज़ टू कम डाउन, राइट बीना? दैट इज़ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो 9th फ्लोर पे जाके जो भी इंसान जंप मारेगा वो तो गिरेगा ही गिरेगा. देयर इज़ नो ऑप्शन. इट डजेंट मैटर हु द पर्सन इज़, उसकी डिग्री क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कुछ भी होने दो, वो इंसान गिरेगा ही. इसलिए इस लॉ को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल लॉ. यूनिवर्सल लॉ एक ऐसा लॉ है, या कोई कहता है कि नीचे गिरने के बाद फिर से ऊपर जाएगा. वो बात सही है क्योंकि वो जिंदा बचेगा नहीं तो, लेकिन सबसे पहले नीचे तो आएगा ही आएगा. ओके, आफ्टर द पर्सन फॉल्स द पर्सन गोज अप अगेन, राइट? डाइज. कहने का मतलब यह है कि इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ. अ यूनिवर्सल लॉ इज़ अ लॉ दैट इज़ एप्लीकेबल टू एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग. वो किसी को छोड़ता नहीं है, वो नियम हर इंसान के लिए लागू पड़ता है. इसी तरह आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम के बारे में सीखने वाले हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. इसको हम कहते हैं आकर्षण का नियम. ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि समान चीज़ें आकर्षित होती है. या देखिए, हम जितने भी लोग इस फेसबुक लाइव सेशन में जमा हुए हैं, सबकी सोच कहीं ना कहीं एक तरह की है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू बी लर्निंग समथिंग न्यू, एवरीबडी वांट्स टू टेक देयर लाइफ टू अ न्यू लेवल, एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी. तो कहीं ना कहीं एक तरह की सोच वाले इंसान जो होते हैं वो हमेशा साथ में आते हैं. आप देखेंगे कि पॉजिटिव लोग भी हमेशा साथ में होते हैं, नेगेटिव लोग हमेशा साथ में होते हैं. यू विल सी ऑल दिस हैपनिंग. ओके, यू विल सी दैट सिगरेट पीने वाले भी जनरली लोग साथ में ही होते हैं. लाइक आप सरप्राइज हो जाएंगे कि एयरपोर्ट में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जैसे वो गैस चेम्बर्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी अंदर जाके लोग साथ में सिगरेट पीते हैं. इसका मीनिंग ये हुआ कि समान चीज़ें आकर्षित होती है. ओके, so you will see that similar things are always together. So what does this mean? This law actually applies at a thought level. क्योंकि हमारे माइंड में जो भी थॉट्स क्रिएट होते हैं वो भी एक ऊर्जा है. इट्स अ बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्योंकि हमें पता है कि पूरे यूनिवर्स जो है वो सिर्फ एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी. तो हमारा थॉट जो है वो भी तो एक एनर्जी है.
हमारे माइंड में हम जो भी सोचते हैं वो एक ऊर्जा के रूप में बाहर जाता है. यू नो, वी कॉल देम वाइब्रेशंस. या सो वेन एवर यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, यू आर एमिटिंग, आपके अंदर से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं. अब ये वाइब्रेशंस हमें दिखते नहीं है क्योंकि वो नेकेड आई से नहीं दिखते, लेकिन अगर आप एक मशीन यहाँ पे लगाओगे जिसका नाम है EEG मशीन, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ, अगर आप उस मशीन को लगाओगे तो आप देखेंगे जैसे आप सोचते हो वो मशीन में उसका वेवफॉर्म दिखेगा. दैट मीन्स आप जो भी सोचते हो उसकी तरंगे आप बाहर भेज रहे हो. अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि समान चीज़ें आकर्षित होती है. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारी सोच जिस तरह की है उसी क्वालिटी की चीज़ें हमारे लाइफ में आएगी. इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको हम दो तरह से बोल सकते हैं. एक है समान चीज़ें आकर्षित होती है, और दूसरा तरीका उसको जो बोलने का है वो ये है कि व्हाट वी गिव आउट वी गेट बैक. हम दुनिया को जो देते हैं वही हमें मिलेगा. अब हमारे माइंड में हम जो सोच रहे हैं वो भी तो एक सिग्नल के रूप में हम बाहर दे रहे हैं. इसको हम वाइब्रेशंस कहते हैं. सिंपल लैंग्वेज में हम उसको वाइब्स कहते हैं. वाइब्स, यू मस्ट हैव ऑल हर्ड अबाउट द टर्म वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स. या ज़्यादातर लोगों ने उसके बारे में सुना होगा. पॉजिटिव वाइब्स क्या होता है, नेगेटिव वाइब्स. वाइब्रेशंस का मीनिंग मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ. समझो कभी कभी दूर से कोई इंसान आ रहा है और आप उसको देख करके भागते हो वहाँ से कि इसको नहीं मिलना है. ऐसे क्यों होता है? क्योंकि इसकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, इसलिए आप वहाँ से भाग जाना चाहते हो. ओके, मतलब वो इंसान आपके पास में भी आ गया तो आपकी सारी एनर्जी खींच लेता है. तो इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव वाइब्स. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप मिल करके, आपने उनको सिर्फ 5 मिनट दिया था लेकिन आप आधा घंटा उनके साथ में निकाल ले तो भी आपको पता नहीं चलता. दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वाइब्स, बिकॉज यू फील लाइक बीइंग विद देम, यू फील लाइक स्पेंडिंग टाइम विद देम. ओके, सो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वाइब्स. यू कैन एक्चुअली फील इट इन देयर प्रेजेंस. आप उनके प्रेजेंस में आपको बहुत अच्छा लगता है. अब कुछ जगहें भी होती है ऐसी जहाँ पे आप जाओगे तो आपको लगता है जल्दी निकलो यहाँ से, जरा भी अच्छा नहीं लगता है. यू नो, लेट्स मूव आउट ऑफ दिस, क्योंकि उस जगह की वाइब्रेशंस नेगेटिव होती है. ओके, इस तरह से कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ से निकलने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि वहाँ इतना पॉजिटिव लगता है कि आपको लगता है कि मैं वहीं पे बैठे रहूँ. जैसे कोई भी, यू गो टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, लाइक यू गो टू अ टेम्पल, यू गो टू अ चर्च, यू गो टू अ मॉस्क, यू नो, वहाँ की वातावरण इतना पॉजिटिव, वाइब्रेशंस इतना पॉजिटिव होता है कि आपको लगता है बस यहाँ पे बैठे रहूँ. या कोई हिल स्टेशन में आप जाओ तो इसको हम कहते हैं वाइब्रेशंस. अब ये जो वाइब्रेशंस है वो हमारे अंदर से भी तो बाहर आ रही है. वी आर थ्रोइंग आउट वाइब्रेशंस, लेकिन ये वाइब्रेशंस हमें दिखते नहीं है. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक. और या तो हम जो भी समान चीज़ें हैं वो आकर्षित होती है. इसका मतलब है हमारे माइंड में हम जो भी सोचते हैं और जो तरंगे भेजते हैं उसी क्वालिटी की चीज़ें हमारे लाइफ में आएगी. तो हमारे लाइफ में क्या क्या आता है? देखिए, एक तो परिस्थितियाँ आती है. यू नो, पीपल, इवेंट्स, आइडियाज, सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस, इंस्पिरेशंस, ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में आकर्षित होते हुए आती है. इसलिए इसको हम आकर्षण का नियम कहते हैं. जिस क्वालिटी की हमारी सोच होगी एग्जैक्टली उसी क्वालिटी की चीज़ें हमारे लाइफ में आएगी. अब समझो हम ये कहते हैं कि आज का तो दिन ही खराब है. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल ये दिया था पहले दिन, आज का तो दिन ही खराब है, तो आपने कौन सा वाइब्रेशन भेजा? आज का तो दिन ही खराब है. अब उस चीज़ को सच करने के लिए क्या होगा? ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो आपका उस दिन को ख़राब कर देगा. ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जो इस दिन को ख़राब कर देगी. ऐसी ऐसी चीज़ें आती है जिसकी वजह से पूरा दिन खराब हो जाता है. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली इतना पावरफुल नियम है कि अगर हम इसको सही ढंग से इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए कुछ भी हासिल करने में हमें मदद कर सकता है. तो इस करंट परिस्थिति में भी अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी ठीक रहे और ये पूरी दुनिया ठीक रहे, तो हम अपने माइंड में अगर उस तरह की सोच रखते हैं और उस क्वालिटी के वाइब्रेशंस अगर हम भेजते हैं तो पूरी दुनिया की वाइब्रेशन बदल सकती है. एक इंसान की वाइब्रेशन काफ़ी पावरफुल होती है, लेकिन एक साथ में मिल करके लोग जब एक ही वाइब्रेशन को साथ में भेजते हैं तो दैट इज़ नोन एज द पावर ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस फ्रॉम डे वन. But when a multiple number of peoples are sending the same vibrations, it has to make a change on the planet, okay? It has to make a change. So हम क्या करेंगे? इस नियम को सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे. अब
ये नियम को अगर बहुत अच्छी तरह समझना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर बहुत अच्छी तरह समझना है, तो एक मूवी आई थी या एक उसकी बुक भी है जिसका नाम है द सीक्रेट, रहस्य। ओके, कितने लोगों ने देखा है रहस्य? हैज एनीबडी सीन द मूवी द सीक्रेट? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव सीन इट. इट इज़ अ मूवी बाय दिस ऑथर नोन एज रोंडा ब्रायन. ओके, तो रोंडा ब्रायन ने एक बुक लिखी है द सीक्रेट, और साथ साथ में उसका एक वीडियो भी है, रहस्य या द सीक्रेट. आप उसको प्लीज़ देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो. वो इंटरनेट पे भी, यूट्यूब पे भी शायद मिल सकता है, बट अदरवाइज उसकी ऑफिशियल कॉपी खरीद लीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिए, यू नो, बिकॉज दैट वीडियो एक्चुअली एक्सप्लेन्स टू यू हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ योर माइंड टू अट्रैक्ट थिंग्स इन टू योर लाइफ. ओके, तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड कि इस नियम को हम कैसे इस्तेमाल करें, उससे पहले मैं आप सबको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये क्षण में, देखिए अभी कितना बजा है, 9:50 हुई है और आज की तारीख है 29 मार्च 2020. इस क्षण में बाहर कोई भी परिस्थिति हो या कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, लेकिन इस क्षण में हमारे पास दो चॉइसेस है. यू नो, वी हैव टू चॉइसेस. एक चॉइस ये है कि हम हमारे प्रॉब्लम्स को गिनते रहे. यू नो, ये प्रॉब्लम है, कोरोना वायरस का इशू है, मेरे घर में कोई सुनता नहीं है, इतना परेशानी हो रही है, नेगेटिविटी आ रही है, पता नहीं आगे क्या होगा. तो हम अपने प्रॉब्लम्स को गिनते रह सकते हैं. अगर हम प्रॉब्लम्स को गिनेंगे तो हम कौन सा सिग्नल भेज रहे हैं? प्रॉब्लम का. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबके लिए काम करता है, इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सबके लिए काम करता है. तो अगर हम बोलते रहेंगे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, तो हम सिग्नल कौन सा भेज रहे हैं? प्रॉब्लम का. 100%, इनफैक्ट 200% और भी प्रॉब्लम्स आएंगे. ओके, लेकिन हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है. या तो हम अपने प्रॉब्लम्स को गिने, जिसको हम कहते हैं काउंटिंग माई प्रॉब्लम्स, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स, कि परमात्मा ने जो मुझे दिया है उसको मैं थैंक यू कहूँ. इसलिए आपको डे 1 पे आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि वी नीड टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड का मीनिंग क्या है? हम अपने ब्लेसिंग्स को गिनते हैं. तो जैसे ही हम अपने ब्लेसिंग्स को गिनने लगते हैं, थैंक यू गॉड कि तूने मुझे अच्छा दिन दिया, मेरे फैमिली है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे पास यू नो पैसा है, फूड है, खाना है, हवा है. सो वी आर काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स. तो जब हम अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं तो हम कौन सी सिग्नल भेज रहे हैं? ब्लेसिंग्स की. तो क्या आएगा? और ब्लेसिंग्स. ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी सिंपल. व्हाट वी गिव आउट इज व्हाट वी गेट बैक. लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ये मशीन जो है ये कभी बंद ही नहीं होता, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली यहाँ पे सोच चलते रहती है. जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें दिन में कितने विचार आते हैं? 60,000 से 90,000 विचार आते हैं, 60 to 90,000 थॉट्स. अब आप सोचिए, ये मशीन चालू ही है तो कॉन्स्टेंटली सिग्नल भेज रही है. जिस क्वालिटी की सिग्नल हम भेज रहे हैं एग्जैक्टली उसी क्वालिटी के हमारा जीवन बन सकता है. और ये लॉ जो है हम किसी भी गोल को हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कोई भी हमारा लक्ष्य हो, कोई भी गोल हो, उसको अचीव करने के लिए हम इस नियम को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा. मेरे कोच है, उसका नाम है जैक कैनफील्ड. ही इज़ नोन एज अमेरिकाज नंबर 1 सक्सेस कोच. उन्होंने ये बुक्स लिखी है, चिकन सूप फॉर द सोल, फिर द सक्सेस प्रिंसिपल्स. एक बुक यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, रेफर करता हूँ. इट्स अ वेरी नाइस बुक. इट इज़ कॉल्ड द सक्सेस प्रिंसिपल्स. इस बुक को भी पढ़िए. इट्स अ ब्यूटिफुल बुक, या जहाँ पे कामयाबी के सारे नियमों के बारे में लिखा है. तो मेरा एक सपना था, 2012 में वो पहली बार इंडिया आए थे. मतलब शायद उसके पहले भी आए होंगे, लेकिन मैं उनको पहली बार मिला था 2012 में. तो वो आए थे नेहरू ऑडिटोरियम में मुंबई में और एक लेक्चर दे रहे थे. और उस समय उनको देख करके मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे गुरु होने चाहिए. वो इतना अच्छा सिखाते थे, उनका जो टॉपिक है वो भी इतना अच्छा है. इनफैक्ट द सीक्रेट जो मूवी है उसके अंदर भी वो फीचर करते हैं. ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज ओन सक्सेसेस इन द सीक्रेट. ओके, तो मेरा एक सपना था कि वो मेरे टीचर बने, मेरे गुरु बने. तो जैसे ही मैंने उस चीज़ के बारे में सोचने लगा तो कुछ ना कुछ होने लगा. उनके यहाँ से एक ईमेल आया. उस ईमेल को मैंने देख करके उनको मैंने कहा कि क्या आप मेरे कोच बन सकते हो, क्या मेरे गुरु बन सकते हो. तो वो मेरे गुरु बन गए. तो उस समय उन्होंने मुझे पर्सनल कोचिंग दिया था.
तब मैंने अपना लाइफ पर्पस, अपने जीवन का मकसद तय किया था कि मुझे 100 करोड़ लोगों तक ये माइंड ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग पहुंचाना है। क्योंकि आप सब लोग मानते हैं कि माइंड ट्रेनिंग की ज़रूरत है आज की दुनिया में। इट इज़ बैडली नीडेड, यू नो, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, हाउ टू यूज़ योर माइंड टू क्रिएट सक्सेस, हैप्पीनेस, ऑल ऑफ दैट। तो उस समय मैंने एक अपना लाइफ पर्पस बनाया था, एक जीवन का मकसद बनाया था कि मुझे 100 करोड़ लोगों तक ये चीज़ को सिखाना है। वो उनके गाइडेंस के नीचे ही मैंने ये सीखा था। उसके बाद मैंने और भी सपना किया कि कभी ना कभी मैं उनको मिलूँगा, फिर वो मेरे गुरु होंगे, मुझे पर्सनली सिखाएंगे। तो मेरा वो भी सपना पूरा हुआ। किसी ना किसी तरह मैंने उनका ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम किया, जो ऑनलाइन वेबसाइट पे उनसे मैंने सीखा, और उसको सीख करके मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को और ज़्यादा पावरफुल बनाया। फिर और भी सोचते रहा कि मुझे उनको पर्सनली मिलना है। ये सारे प्रोग्राम्स तो ऑनलाइन किए थे मैंने, फ़ोन पे ऑनलाइन सब कुछ किया था। तो कुछ ऐसे सब चीज़ें बनने लगी जिसके वजह से पिछले साल 2019 में मुझे एक मौका मिला कि मैं उनको पर्सनली जाके मिलूँ अमेरिका। तो वो भी मेरा सपना पूरा हुआ। मैं वहाँ पे 2 बार गया पिछले साल, और वहाँ उनका जो सबसे एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी मेरा पूरा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना भी यहाँ पे सोचते हो वो सपना पूरा होता है। कैसे होता है मुझे मत पूछो, ये कुदरत का काम है। जो हम बोते हैं वो ही हम पाते हैं। ज़मीन में बीज बोने के बाद बीज हकीकत में कैसे बदलता है ये मुझे मत पूछो, ये तो कुदरत का काम है। ना हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं, लेकिन एक बीज को हकीकत में बदलने का काम कुदरत का है। इसी तरह जब हम सोचते हैं तो हम एक्चुअली बीज बो रहे हैं। यू नो, यू कॉन्स्टेंटली सेंडिंग वाइब्रेशंस, एंड व्हेन यू सेंडिंग वाइब्रेशंस यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग। यू विल अट्रैक्ट पीपल, मनी, रिसोर्सेज, इवेंट्स, आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज, एवरीथिंग दैट मेक्स योर विश ट्रू। तो मेरा वो एक सपना पूरा हो कि मैं अमेरिका चले गया, वहाँ पे उनसे पर्सनली मैंने सीखा, और उनका जो हाईएस्ट लेवल सर्टिफिकेशन है वो भी मैंने किया। उसके बाद आप देखिए क्या मैजिक हुआ। उसके बाद मेरा एक और सपना था कि वो इंडिया जब आए, इनफैक्ट वो इंडिया आए और मेरी एकेडमी में खास आए। तो ये भी मेरा एक सपना अभी फरवरी में पूरा हुआ। किसी ना किसी तरह उनका इंडिया आने का हुआ, बिकॉज ही हैड कम हियर टू मीट डॉक्टर पंकज नरम, who unfortunately passed away, but he had come here to, you know, go undergo some health treatments and all of that with Dr. Pankaj Naram. और उस बीच में मैं सोच रहा था कि वो आने चाहिए, पक्का आने चाहिए मेरे एकेडमी में। एंड ही केम। इमेजिन, फरवरी 25 को वो खुद चल के मेरे एकेडमी में आए। उन्होंने मेरे जो ट्रेनर्स हैं उनके साथ में अच्छी सी मीटिंग की, सबके साथ में उनकी पूरी नॉलेज शेयर किया। अब आप सोचिए, जैक कैनफील्ड जैसे इंसान मेरी एकेडमी में, वो भी, माई एकेडमी इज़ नॉट सो बिग कि वो खुद चल के आए, लेकिन वो आए, उन्होंने सबको एड्रेस किया और इतने खुश होकर के गए। एंड टुडे ही इज़ कम्युनिकेटिंग विथ मी ऑन मच लार्जर थिंग्स। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पे आप जो सोचते हो एक ना एक दिन वो सच बनकर ही रहता है, लेकिन उसमें विश्वास होना ज़रूरी है। ओके, विश्वास होना ज़रूरी है। सो ही केम एंड ऑल ऑफ द ड्रीम्स, मेरा मतलब ये एक सबसे बड़ा एक सपना था, वो मेरा पूरा हुआ। इनफैक्ट इसी नियम को इस्तेमाल करके, अपनी मन की शक्तियों को इस्तेमाल करके, मैंने अपने ट्रेनिंग के काम को भी कहाँ से कहाँ मैं लेके गया। दिस इज़ ओनली बिन पॉसिबल बिकॉज आई हैव लर्न हाउ टू यूज़ माई माइंड। और इसलिए हम ये सारे दिनों में जो हम टाइम साथ में निकालेंगे, वी गोइंग टू लर्न अ लॉट अबाउट द माइंड, कि इस माइंड को हम कैसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम कैसे इस्तेमाल करें। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 स्टेप्स हैं। आप मूवी में देखेंगे, द सीक्रेट में देखेंगे, तो देयर आर 3 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज आस्क, मतलब मांगो, क्या चाहिए उसको मांगो। सेकंड इज बिलीव, ओके, मतलब आपने मांगा, उसके बाद आपको विश्वास होना चाहिए कि आपको वो मिलेगा। और तीसरा इज रिसीव, मतलब जो आपने मांगा था उसको रिसीव करने के लिए आप तैयार हो जाओ। तो ये तीनों स्टेप को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर अच्छी तरह से समझते नहीं है, इसलिए वो हासिल नहीं कर पाते। मतलब उनको लगता है कि ये काम ही नहीं करता है, ये ऐसे थोड़ी हो सकता है, सोचा और मिला, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सोचोगे तो ऑटोमेटिक कुछ हो जाएगा, सोचोगे तो उसके बाद एक्शन भी लेना पड़ेगा, लेकिन सही ढंग से अगर सोचा तो आप आकर्षण भी करते हो, वो सारी चीज़ें आकर्षित होती है जिससे कि आप उस सपने को पूरा कर सकते हो। जैसे मुझे जैक कैनफील्ड को मिलना था,
तो उनको मिलने के लिए जितना मुझे पैसे की ज़रूरत थी, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने की ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें खुद ब खुद होने लगी और मैं कर पाया उस प्रोग्राम को, और वो खुद भी चल के आए। वो इसलिए क्योंकि वो मेरा एक सपना था। ओके, सो हम कैसे करेंगे? 3 स्टेप्स: आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो सबसे पहला जो चरण है, फर्स्ट स्टेप इज टू आस्क। आस्क मतलब मांगना। और जब हम कोई भी चीज़ को मांगते हैं तो उसके लिए बहुत क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इट हैज़ टू बी वेरी वेरी क्लियर। अब ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, दे आर कन्फ्यूज्ड इन व्हाट दे वांट। इसलिए कल हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे हाउ टू बिकम वेरी क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। क्योंकि अगर हमें क्लैरिटी नहीं है तो फिर देयर इज कन्फ्यूजन, राइट? जैसे हमने आपको कहा कि आपके अंदर एक जीनी है। अब जीनी इतना पावरफुल है कि आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपको क्या चाहिए तो जीनी को आप बताओगे क्या? व्हाट आर यू गोइंग टू टेल द जीनी? ओके। और जीनी को अगर आप कंफ्यूजिंग सिग्नल्स बोलोगे, लाइक एक दिन आप बोलोगे, समझो मैं मुंबई में हूँ, एक दिन मैं कहता हूँ मुझे अहमदाबाद जाना है, तो बेचारा मेहनत करते करते अहमदाबाद लेके जाता है। ओके। और रास्ते में थोड़ा ही आगे पहुँचने के बोलते नहीं 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 मुझे अहमदाबाद नहीं जाना है, कोलकाता जाना है, तो बेचारा वापस आपको कोलकाता की ओर लेके चलता है। फिर आपको नहीं 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 कोलकाता नहीं जाना है, मुझे कोयम्बतूर जाना है, तो फिर आपको नीचे जाने ले। वो बेचारा इधर उधर थक जाता है, बिकॉज ही इज नॉट क्लियर ऑफ वॉट यू वॉन्ट। एंड दैट इज वाई यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर ऑफ वॉट यू वॉन्ट। इनफैक्ट जो भी आप सोचते हो उसमें क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं है तो कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन है तो जीनी को पसंद नहीं है। इवन द यूनिवर्स गेट्स कन्फ्यूज्ड। लाइक एक दिन आप बोलते हो मुझे घर चाहिए, और दूसरे दिन आप बोलते हो कि ये घर पॉसिबल नहीं है, मुझसे होगा नहीं। तो आप दो अलग अलग चीज़ें मांग रहे हो। सी फर्स्ट डे आप बोल रहे हो मुझे एक अच्छा घर चाहिए, और दूसरे दिन आप बोलते हो कि वो पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट मीन्स जो चीज़ आ रही थी वो वापस चली जाती है। इसलिए जो सेकंड कदम है वो है बिलीव। मतलब एक बार आपने मांगा मतलब उसके ऊपर 100% विश्वास होना ज़रूरी है। देखिए जॉय है, वो कहता है स्ट्रांगली बिलीव दैट बैड टाइम्स मेक यू स्ट्रांग एंड प्रिपेयर यू फॉर बिगर थिंग्स इन योर लाइफ। जॉय एक हमारे पार्टिसिपेंट है, ही वर्क्स फॉर अ कंपनी कॉल्ड निज मॉर्टिजेंस। उनके बॉस भी शायद आज है कि नहीं पता नहीं, दिख नहीं रहे मुझे, बट हिज नेम इज़ मिस्टर संजीव प्रभु। तो जॉय हैज़ क्रिएटेड मिरेकल्स। मतलब जिस तरह से उसने ये सारी टेक्निक्स को यूज़ करके अपने काम में मिरेकल्स क्रिएट किए, इट हैज़ बिन अमेजिंग जर्नी फॉर हिम। इनफैक्ट जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे, उन्होंने बहुत सारे मिरेकल्स क्रिएट किए हैं जस्ट बाय यूजिंग ऑल दीज टेक्निक्स। ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा फर्स्ट स्टेप इज टू बिकम क्लियर। इसको समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। सपोज आप एक रेडियो के सामने बैठे हो, या हैव अ रेडियो। अब रेडियो के ऊपर आपने देखा होगा कि वो डायल होता है, डायल से आप ट्यूनिंग करते हो तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ट्यून करके वो स्टेशन बजता है। तो सपोज आपको रेडियो मिर्ची बजाना है तो आपको कौन से स्टेशन पे जाना पड़ेगा? 98.3, करेक्ट। सो 98.3 पे जाओगे तो वो बजेगा, नहीं तो बजेगा नहीं। 98.2 पे भी नहीं बजेगा, 98.4 पे भी नहीं बजेगा। इसका मतलब है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट स्टेशन से ट्यून होगी तो ही वो चीज़ आती है। इसी तरह हमारा लक्ष्य की फ्रीक्वेंसी अगर हम ट्यून हो जाए और उसी फ्रीक्वेंसी को अपने माइंड में पकड़ के रखे तो उसको सर्च करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो धीरे धीरे आकर्षित होते हुए आपके लाइफ में आता है। ओके, समटाइम्स यू सी द पर्सन सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू ऑन द प्लेन। मतलब ऐसे ऐसे लोग आपको कहाँ मिल जाते हैं, आप सरप्राइज हो जाते हो। कभी कभी कोई इंसान आपको प्लेन में बगल में बैठा है, कभी ट्रेन में मिल जाता है, कभी कोई फेसबुक पेज पे मिल गया। बट ये जितने लोग आपको मिलते हैं वो सब आपको उस लक्ष्य को पाने के लिए, हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज आस्किंग। दैट मीन्स यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट। तो कल मैं आस्क के ऊपर काफ़ी सारा समय निकालूंगा ऑन हाउ टू बिकम वेरी क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट। बट आज मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूँगा कि थोड़ा सा 2-3 घंटे बैठ के अपने आप से पूछो कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, व्हाट डू आई रियली वांट। क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं होंगे तो अनफॉर्चुनेटली जीनी आपके लिए अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर। यू राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि मुझे अपने लाइफ में क्या चाहिए। यू कैन राइट डाउन कि आपको अपनी हेल्थ कैसी चाहिए, रिश्ते कैसे चाहिए, आपको कम्युनिटी सर्विस में क्या करना है,
आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी होनी चाहिए, मतलब आपके लाइफ के हर एरिया के बारे में आप लिखिए कि आप क्या चाहते हो। ओके, एक बार आप ये क्लियर हो जाते हो क्या चाहते हो, उसके बाद मैं आपको कुछ छोटे छोटे प्रोसेसेस सिखाऊंगा। उस प्रोसेसेस को आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जो चाहते हो आप उसको आकर्षित कर सकते हो। ओके, अब इसमें एक सबसे बड़ी चीज़, जैसे मैंने आपको कहा कि सबकॉन्शियस माइंड ज़मीन के जैसा होता है। ज़मीन में अंदर एक बार आपने बीज बो दिया, फिर आपको उसके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। यू हैव टू हैव 100% फेथ। ओके, उसके ऊपर विश्वास नहीं है तो आप क्या करोगे पता है? 4 दिन पानी दोगे, आप टेंशन में आ जाओगे, अरे 4 दिन से मैं पानी डाल रहा हूँ अभी तक कुछ आ क्यों नहीं रहा है। फिर से आप 4-5 दिन और पानी डालोगे, 1 हफ्ता 10 दिन हो जाएगा तो आपका टेंशन और बढ़ते जाएगा, अरे ये आ क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा है, ये बीज बाहर सच में बदल क्यों नहीं रहा है। तो अगर आपको बीज पे टेंशन आ गया तो आप क्या करोगे? कुछ दिनों में आप कहोगे चलो लेट मी चेक, यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इतना डाउट आ गया कि आप ज़मीन खोद के चेक करने की कोशिश करो कि अंदर क्या हो रहा है। अब ज़मीन को अगर आपने खोद दिया तो क्या होगा? ख़त्म। अंदर जितना भी अच्छा काम हुआ था वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू इज़, एक बार आपने बीज को बोया मतलब आपको 100% फेथ और विश्वास होना ज़रूरी है कि ये होकर ही रहेगा। जब आपको बीज के ऊपर पूरा विश्वास होता है तो आप क्या करते हो? पूरी मेहनत से काम करते हो, रोज़ उसको पानी देते हो, रोज़ ध्यान देते हो कि कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं लग गए। यू मेक श्योर यू रिमूव ऑल द वीड्स, यू मेकिंग श्योर दैट द प्लांट इज प्रोटेक्टेड। तो आप वहाँ आसपास एक छोटा सा फेंस बांध देते हो, सारी मेहनत करते हो, रोज़ पानी देते हो, एक ना एक दिन वो छोटा सा पौधा बन जाता है और धीरे 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 पूरा पेड़ बन जाता है और उसमें से हज़ारों फल देता है। राइट, इसी तरह आपको कोई भी लक्ष्य को पाना है तो उतना ही विश्वास से यहाँ पे पकड़ के रखना चाहिए। राइट, पूरे विश्वास के साथ। आप सोचिए गांधी जी के माइंड में 24 घंटे कौन सा पिक्चर चल रहा होगा? There's only one picture that was going on in his mind, is freedom. धीरू भाई अंबानी के माइंड में कौन सा पिक्चर चल रहा था? आई वॉन्ट टू क्रिएट द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी इन द वर्ल्ड। एक ही पिक्चर, एक ही पिक्चर। ये पिक्चर बदलने नहीं देना है। इफ यू चेंज द पिक्चर देन दैट मीन्स यू गिविंग अ डिफरेंट कमांड टू योर जीनी, यू गिविंग अ डिफरेंट कमांड टू द यूनिवर्स। इस पिक्चर को चेंज नहीं आने देना है। ओके, Anita Kumar says this online lessons is also miracle because I was thinking of reviewing whatever you taught in the workshop 2 years back. Thank you Anita ji, thank you, and I'm glad that I'm once again able to reach out to all of you. जनरली मेरे शेड्यूल्स के वजह से मैं कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ, बट दिस वॉज गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी आई वुड से इन अ सेंस टू कनेक्ट विथ ऑल ऑफ यू. ओके, एंड आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट ऑल्सो टू कंडक्ट अ माइंड पावर वर्कशॉप ऑनलाइन. जो मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट करता हूँ बाहर, तो पीपल हैव बीन आस्किंग मी सर कैन यू कंडक्ट अ वर्कशॉप ऑनलाइन. तो मोस्ट समथिंग इन द नेक्स्ट 1 or 2 weeks तो मैं आप सबको बताऊंगा. वहाँ पे हम फॉर्मली ये पूरे कोर्स को कवर करेंगे, वेर यू कैन लर्न लॉट्स ऑफ टूल्स, टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज एंड ऑल ऑफ दैट टू अचीव एनी गोल, सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ऑल ऑफ दैट. ओके, सो वहाँ पे कंटिन्यूटी में होता है ना तो सारा समझ में आता है. यहाँ पे हम बिट्स एंड पीसेज में कर रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है. बट इन दैट वर्कशॉप वी गोना डू एवरीथिंग मोर इन डिटेल. सो आई विल लेट यू ऑल नो व्हेन द वर्कशॉप हैपेंस एंड देन यू ऑल कैन जॉइन अस. ओके, ग्रेट. सो कैसे क्लियर होंगे? यू आर गोइंग टू बिकम क्लियर बाय राइटिंग इट डाउन. देखो, जब आप कोई भी चीज़ लिखते हो पेज के ऊपर, पेपर के ऊपर, तो हाथ और आपके सबकॉन्शियस माइंड का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है. ओके, रिसर्च शोज दैट व्हेन यू राइट समथिंग डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गोल हैपनिंग इंक्रीजेज बाय 1100%. आप मानेंगे नहीं, लेकिन जैसे आप किसी गोल को अपने पेपर पे लिखते हो तो उसके सच होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है. तो व्हाट ऑल ऑफ अस मस्ट डू इज डेफिनेटली राइट वन गोल, दैट द वर्ल्ड इज बैक टू नॉर्मल. एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज नाउ कंप्लीटली हैप्पी, पीसफुल, प्रॉस्परस एंड हेल्दी. एवरीबडी इज हील्ड, द वर्ल्ड इज नाउ सेफ. इस तरह का एक गोल लिख करके हमें रोज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है, रोज़ उस तरह की वाइब्रेशन भेजनी है, ताकि हम इस प्लैनेट को फिर से नॉर्मल अवस्था में लेकर के आ सकते हैं. ओके, वी विल ट्राई आवर बेस्ट. हम जितना कर सकते हैं उतना तो हमें करना है, राइट? बाकी तो जितने लोग मेहनत कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं. या सो बट वी कैन डेफिनेटली टेक यूज़ आवर पावर्स टू डू वॉट एवर बेस्ट वी कैन. सो ये आपके लिए आज होमवर्क होगा.
रात को सोचिए, कल सुबह सोचिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। और ये सोचते समय खाली मेरा एक आपको जो रिक्वेस्ट होगा या फिर आपको सजेशन होगा कि सोचते समय ये मत सोचिए कि आपको वो कैसे मिलेगा। डोंट वरी अबाउट हाउ यू विल गेट इट, ओके, जस्ट थिंक बिग। और आपको जो चाहिए उसको आप लिखो। खाली ऐसी कोई भी चीज़ मत लिखिए जो दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड हो, क्योंकि हर इंसान करोड़पति नहीं होना चाहता, हर इंसान कुछ अलग चाहता है। तो उसको आप ढूंढिए कि आपको क्या चाहिए, यू नो व्हाट इज इट दैट यू वांट, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू शुड राइट इट डाउन। या सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू राइट डाउन एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इन अ नोटबुक, और पूरी तरह से क्लियर हो जाइए, राइट। और उसके बाद मैं आपको कल कुछ और स्टेप सिखाऊंगा जिससे कि आप उस चीज़ को अच्छी तरह से फॉलो करके उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो लेट अस रिकैप। वी आर ऑलमोस्ट एट 10:15 टुडे। सी हाउ टाइम फ्लाइज। 45 मिनट निकल गया लेकिन समझ में नहीं आया, राइट। सो आज हमने क्या सीखा? वी अंडरस्टूड दैट देर आर सर्टन लॉज विच गवर्न द यूनिवर्स। कुछ ऐसे नियम हैं जो इस पूरे कुदरत को चलाते हैं। एक नियम का नाम हमने दिया जिसका नाम है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ किसी को नहीं छोड़ता। इसी तरह एक दूसरा नियम है जो किसी को नहीं छोड़ता, इस नियम का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। ये नियम भी किसी को नहीं छोड़ता। आकर्षण का नियम ये कहता है कि समान चीजें आकर्षित होती है। इन इंग्लिश यू कैन से लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, थिंग्स विच आर सिमिलर विल कम टुगेदर, ओके। इनफैक्ट ये प्रूव हुआ है कि चीजें जो सिमिलर होते हैं हमेशा साथ में आती है, राइट। दो इंसान शादी क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी दोनों की सोच मैच होती है, इसलिए वो लोग शादी करते हैं। कहीं ना कहीं रेजोनेट करते हैं, दोनों की कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी मैच होती है, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे अच्छे लगते हैं। दैट इज़ वाई पीपल गेट मैरिड, राइट। इसी तरह दो चीज़ें आकर्षित होती है। वॉट वी गिव आउट वी गेट बैक। हम दुनिया को जो देते हैं वो ही हमें मिलता है। लेकिन हम दुनिया को हमारे सिग्नल्स भी दे रहे हैं, ओके। समझो हम गुस्सा करेंगे तो गुस्सा आएगा, लोगों को प्यार करेंगे तो प्यार आएगा, लोगों को रिस्पेक्ट करेंगे तो रिस्पेक्ट आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हम दुनिया को दे रहे हैं वो है हमारी सोच की वाइब्रेशन। तो यहाँ से जो हम सोच रहे हैं वो भी हम दे रहे हैं, और जो हम दे रहे हैं वो तो हमें आएगा ही आएगा। तो अगर यहाँ पे कंटिन्यूस नेगेटिव सोच चल रही है तो हम अननोइंगली और अनफॉर्चुनेटली वी कीप ऑन अट्रैक्टिंग रॉन्ग थिंग्स इन टू आवर लाइफ, ओके। वो इसलिए क्योंकि हमें इस नियम के बारे में पता ही नहीं था। That is why what we were doing so far is we were living our life unknowingly, unconsciously कहते हैं इसको। Unconsciously हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा था और कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में आ रहा था। आज से हम क्या करेंगे? हमारी ज़िंदगी को कॉन्शियसली जिएंगे, हम सोच के जिएंगे। हम सोचेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, बिकॉज इस माइंड में जो पावर है, हम जो सोचते हैं उसकी इतनी शक्ति है, हमारे शब्दों की इतनी शक्ति है कि इसको अगर सही ढंग से इस्तेमाल करें तो यू कैन लिटरली क्रिएट द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, ओके। सो हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात किया। हमने कहा कि उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 3 कदम है, 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स: आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो आस्क में क्या है? हमें मांगना है। जब हम मांगते हैं तो हमें पूरी तरह से क्लियर होना है कि हमें क्या मांगना है। जैसे रेडियो मिर्ची, अगर आप फ्रीक्वेंसी ट्यून करोगे तो ही तो रेडियो मिर्ची बजेगा। इस सृष्टि में तो कितनी सारी फ्रीक्वेंसीज चल रही है, आप हज़ारों फ्रीक्वेंसीज चल रही है, हज़ारों चैनल चल रहे हैं, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आप ट्यून करोगे उसी चीज़ को आप पकड़ोगे। इसी तरह आपका माइंड जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून हो जाता है, एग्जैक्टली उसी तरह की चीज़ें हमारे लाइफ में आती है। तो हमें अपने माइंड को खुशियों की फ्रीक्वेंसी में ट्यून करना है, कामयाबी की फ्रीक्वेंसी में ट्यून करना है, जॉय की फ्रीक्वेंसी में ट्यून करना है, हैप्पीनेस, लव, ऑल ऑफ दीज। So rather than tuning our frequency into anger, fear, tension, worry, stress, क्योंकि अगर चिंता की फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो गए तो चिंता ही आएगी, वही सिग्नल पकड़ेगा ना। बिकॉज रेडियो, जैसे रेडियो कोई भी सिग्नल को पकड़ता है, इसी तरह हमारा माइंड भी उसी तरह की चीज़ों को आकर्षित करता है। तो वाई नॉट अट्रैक्ट थिंग्स दैट वी वॉन्ट, ओके, बाय मेकिंग श्योर दैट वी हैव द राइट फ्रीक्वेंसी। अगर हम, क्योंकि इसको ट्रेन करने में थोड़ा समय लगता है, तो समझो आप माइंड में से नेगेटिव चीज़ें सोचने लगते हैं, तो आपको एक मैं छोटी सी टेक्निक देता हूँ आज कि समझो आप नेगेटिव चीज़ें सोचने लगते हो, यू नो, बाय हमारी हैबिट ही हो गई, तो नेगेटिव चल रहा है और आप नोटिस करोगे आप नेगेटिव बोल रहे हो, तो आप तुरंत क्या बोलोगे? कैंसिल कैंसिल। क्या बोलोगे? कैंसिल कैंसिल।
तो जैसे ही आप कैंसिल कैंसिल कहते हो तो द कमांड टू द यूनिवर्स इज कट, उसको आप काट दोगे और एग्जैक्टली उल्टा स्टेटमेंट बोलोगे। तो सपोज आप सुबह सुबह बोलते हो आज का तो दिन ही खराब है, और आपने नोटिस किया यार ये क्या बोल दिया, तो आप क्या बोलोगे, कैंसिल कैंसिल, आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन होगा। ओके, ये मेरा काम अटक गया, पूरी तरह से अटक गया, पता नहीं कब होगा, कैंसिल कैंसिल, ये काम होकर ही रहेगा। पता नहीं इस दुनिया में क्या होगा आगे जाके, कोरोना वायरस से कितना नुकसान होगा दुनिया में, पता नहीं। आपने नोटिस किया कि आपने जो बोला आपको चाहिए नहीं, तो आप क्या बोलोगे, कैंसिल कैंसिल, दिस टू शैल पास एंड द वर्ल्ड इज नाउ वेरी सून गोइंग टू बिकम नॉर्मल। ओके, तो हम क्या करेंगे, आज से कैंसिल कैंसिल टेक्निक को एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे। कोई भी नेगेटिव कमांड को भेजना ही नहीं है, अगर आप भेजोगे तो आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव कमांड को वहीं के वहीं काट देंगे। ओके, सो आस्क इज अबाउट बिकमिंग क्लियर। तो मैंने आपको क्या कहा, आज एक होमवर्क दिया मैंने आपको कि आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। और जब आप क्लियर हो जाते हो तो ये मत सोचो कि वो कैसे मिलेगा। ओके, आई एम गोइंग टू टीच यू लिटिल लिटिल स्टेप्स ऑन हाउ यू कैन अचीव ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके, सो आई गेस वी आर टाइम अप नाउ, वील डू अ लिटिल मेडिटेशन। और हम इस मेडिटेशन को रोज़ इसलिए कर रहे हैं, इसका मैं पर्पस आपको बताता हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग, करीब करीब अभी 150 से भी ज़्यादा लोग, 160 लोग अभी फ़िलहाल ऑनलाइन है। तो 160 लोग जब एक साथ में एक ही विचार को सोचते हैं तो उसका पावर है 60, 160 मल्टीप्लाई बाय 160 कितना होता है वो, 16 16 कितना होता है, और एनी वर्ड्स, so I just forget, but it goes into thousands, right? So we are creating a very very powerful vibration and we need to make sure that we do this every single night. तो आपको, कुछ लोगों को शायद लगता होगा कि सर रोज़ सेम मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है। हर रोज़ रात को अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब सेम वाइब्रेशन देते हैं तब वो उसको पकड़ता है। रिसर्च ये कहता है कि कोई भी वाइब्रेशन को अगर आप कंटिन्यूस करते रहते हो 30 दिन से ज़्यादा, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको पकड़ ही लेता है और उसको एक ना एक दिन सच में बदल के ही रहता है। ओके, सो वी आर गोना डू दिस। सो निशाद इज आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हाट टू डू इफ fears turn up during alpha state in the meditation, how do we tackle that? Nishad, in the meditation also you should say cancel cancel, and just cut it out and replace it with a positive thought. Okay, or you can tell yourself that I know that you are telling me this negative thought for a reason, it's okay, you be quiet, I know what I'm looking for. Okay, तो आपको उस माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव कमांड दे करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ओके, एंड रजनी इज ऑल्सो गिवन अ नाइस सजेशन। सोनिका जी इज डन द कैलकुलेशन, इट इज 256, so 25,600. So that is the power of the frequency that we'll be creating together today. Okay, great. And Nishad, that's a good idea with Rajni gave, you can tap while you are meditating if you're feeling the fear. Okay, maybe try that out also, that should also work. Great, let's do a little meditation everybody. Gently अपने चेयर पे आराम से बैठ जाइए in a relaxation position. और मेक श्योर दैट योर हैंड्स एंड लेग्स आर नॉट क्रॉस्ड। हाथ को क्रॉस नहीं करना है, ऐसे हाथ को अपने लैप पे रखना है, अपने बैक को अच्छे से रेस्ट करना है पीछे चेयर के ऊपर, स्पाइन को जितना हो सके स्ट्रेट रखना है। धीरे से अपनी आंखें बंद करिए, जेंटली क्लोज योर आइज। I think Ishwar is saying very right, because there are 160 plus, there are a lot of family members sitting in each room. So God knows how many people are sitting right now, but thank you so much for being there. Gently close your eyes and start taking deep long breaths. लंबी और गहरी सांसें लेना शुरू करें। And as you start taking deep long breaths, you allow yourself to go deeper and deeper and deeper into meditation, into relaxation. लंबी और गहरी सांसें लेनी है। जितना समय सांस लेने में लेते हो उतना ही समय सांस बाहर निकालते समय ले लीजिएगा।
With every inhale, take in love, joy, peace, and serenity. And with every exhale, you can let go of all the tensions, all the worries, and all the anxieties from your system. सारे तनाव को अपने सिस्टम में से छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। महसूस करिए कि सांस अंदर लेते समय ब्रह्मांड की सारी अच्छाइयाँ आपके अंदर जा रही है, और सांस बाहर निकालते हुए आपके अंदर जो भी तनाव है, जो भी टेंशन है, चिंताएं है, वो सारी चीज़ें बाहर एक ब्लैक गैस के रूप में बाहर निकल रही है। और अपना पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर रखें। सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। सांसों के ऊपर ध्यान देने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने नाक के ऊपर ध्यान दीजिए, so that you can literally feel the air is going in and coming out, going in and coming out. अपना पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर रखें। एक गहरी सांस लीजिए और सांस बाहर निकालते हुए अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स बोथ योर हैंड्स एंड योर लेग्स completely. Just let them go loose. Relax your hands, relax the bones, relax the muscles, relax the tissues, and relax all the cells of your hands and your legs completely. Just let them go loose. अपना पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर रखें। सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। एक गहरी सांस लीजिए और सांस बाहर निकालते हुए अपने एब्डोमेन मसल्स, पेट के मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए। अपने चेस्ट के मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए और आपके पीठ के सारे मसल्स को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स ऑल दी ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन्स के ऊपर ध्यान देके रिलैक्स कर दीजिए उनको। रिलैक्स ऑल द बोन्स, all the muscles, all the tissues, all the cells, all the molecules, and every single atom of your abdomen area, chest area, and your entire back completely. Just let them go loose. Keep all your attention focused on your breathing. Feel the air going in and coming out, going in and coming out. Take a deep breath, and while exhaling, relax your shoulder muscles, कंधे के मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए। Relax your neck muscles, गर्दन के मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए। And relax all the muscles of your face completely. Just let them go loose. आपके चिन को रिलैक्स करिए, होठों को रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स योर लिप्स, रिलैक्स योर जॉ, योर चीक्स, रिलैक्स द नोज, योर ईयर्स, relax your eyes, your temples, relax the forehead,
and relax all the muscles on top of your head completely. Just let them go loose. आपका पूरा शरीर सिर से लेके पांव तक अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है. Every single cell of your body is now completely relaxed. Relax, relax, relax. Now that your body is relaxed, we will now relax the mind. For the purposes of relaxing the mind, I will now count down from 20 to 1. And as I count down from 20 to 1, with each count you will take one step downwards. ऐसे महसूस करना है कि आप एक सीढ़ी के ऊपर हो and you're going to take one step down on the staircase. And as you take every step, you will go 10,000 times deeper into the subconscious mind. और जब आप एक की गिनती पे पहुंचोगे तो आप अपने अर्ध जागृत मन की सबसे गहरी अवस्था में पहुंच जाओगे. You will reach one of the deepest levels of your subconscious mind. So starting with 20, start going down the staircase. धीरे धीरे नीचे जाना शुरू करिए. 19, 18, 17, going deeper and deeper. 16, 15. With every step, you're going 1,000 times deeper into your subconscious mind. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. अब आप सीढ़ी के नीचे पहुंच चुके हो और आप अपने अर्ध जागृत मन की सबसे गहरी अवस्था में पहुंच चुके हो. You have now reached one of the deepest levels of your subconscious mind. As soon as you find yourself at the bottom of the staircase, you see a beautiful corridor in front of you. आपके सामने एक बहुत ही सुंदर पैसेज है और पैसेज की दूसरी ओर एक बहुत ही सुंदर दरवाज़ा है. तो आप धीरे धीरे पैसेज पे चलते चलते उस दरवाजे की ओर जाइए. अब आप दरवाजे तक पहुंच चुके हो और वहाँ पे आपको हैंडल दिखता है. तो आप अपना एक हाथ उठा करके हैंडल को पकड़ते हो, उसको घुमाते हो, दरवाज़ा अपनी ओर खींचते हो, दरवाज़ा खुल जाता है. और जैसे आप दरवाजे के बाहर जाते हो तो आप अपने आप को दुनिया की एक बहुत ही खूबसूरत जगह में पाते हो. यू फाइंड योर सेल्फ इन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस ऑन प्लैनेट अर्थ. दिस इज़ अ प्लेस दैट यू ट्रूली लव. एक ऐसी जगह जो आपको बहुत ही पसंद है. और जैसे आप इस सुंदर जगह में पहुंच जाते हो, आपका मन और भी शांत हो जाता है. उस जगह को पूरी तरह से महसूस करिए. हल्की हल्की धूप है, उसको महसूस करिए, उसकी गर्माहट को महसूस करिए. फील द वार्मथ ऑफ द सनलाइट. ठंडी हवा है, उसको अपने चेहरे पे महसूस करिए. आकाश में पक्षियों की आवाज़ को सुनिए. hear the birds chirping in the sky. और आसपास जितने भी खूबसूरत फ्लावर्स है उसकी खुशबू को भी महसूस करिए. और आसपास कोई झरना है तो उस पानी की आवाज़ को भी सुनिए. और जैसे आप इस जगह को पूरी तरह से महसूस करते हैं, आपका मन और भी शांत हो जाता है.
इस समय आपका शरीर और आपका मन दोनों ही पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं. You are now in the alpha state of mind. The alpha state of mind is a highly beneficial state. Whatever you visualize and affirm in this state of mind comes to physical reality in your life. इस अवस्था में आप अपने अर्ध जागृत मन से जुड़ जाते हो और उसके अंदर की असीम शक्तियाँ, द इन्फिनिट इंटेलिजेंस विद इन यू, आप उसके साथ में जुड़ जाते हो. इस शक्ति को इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ में जो भी पाना चाहते हो आप उसको पा सकते हो. The alpha state also has multiple other benefits. It improves your memory, your concentration, your focus, your overall health, physical and mental wellness, your intuition, your ability to take decisions, your confidence level. All of this improves when you learn how to go into the alpha state. अब जैसे आप अपने सुंदर जगह में पहुंच जाते हो, फिर से महसूस करिए कि आप उस सुंदर जगह में हो. आप अपने परमात्मा को आपके सामने देखते हो. यू सी योर गॉड इन फ्रंट ऑफ यू. And as soon as you see God, you're very grateful, you're thankful to God. That thank you so much God for this day. आपने मुझे एक दिन दिया, उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ. I'm alive today, I'm breathing. Thank you so much for the same. Thank you God for my brain, for my mind, for my body, all my organs which are working so harmoniously. मेरे सारे ऑर्गन्स परफेक्टली काम कर रहे हैं और जिस ऑर्गन को जो करना है एग्जैक्टली वही काम सही समय पे करता है. Thank you so much to my heart which is pumping 7/24 with a lot of joy. Thank you to my brain which is controlling such a complex machine such as my body. Thank you to all the people in my life. जितने भी लोग मेरे लाइफ में है उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ. सबसे पहले मेरे पेरेंट्स, उसके बाद मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे जो आज मैं हूँ वो बनाया है. थैंक यू टू माई फैमिली मेम्बर्स, माई स्पाउस, माई चिल्ड्रन, माई सिबलिंग्स, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, जो भी मेरे फैमिली में उस सब के लिए मैं थैंकफुल हूँ. क्योंकि हर इंसान मेरे लाइफ में जो आता है वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है. कोई भी इंसान बिना वजह नहीं आता है. तो आई एम थैंकफुल टू एवरी सिंगल पर्सन इन माई लाइफ. थैंक यू गॉड फॉर ऑल द लाइफ एक्सपीरियंसेस. जितने भी एक्सपीरियंसेस मेरे लाइफ में आए वो भी सारे एक्सपीरियंसेस मुझे कुछ ना कुछ सिखाने आए हैं. तो सारे एक्सपीरियंसेस के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ, बहुत ही थैंकफुल हूँ. ये करंट एक्सपीरियंस जो भी हमारे लाइफ में आया है वो भी हमें कुछ सिखाने आया है. उस एक्सपीरियंस के लिए भी थैंक यू गॉड. थैंक यू गॉड फॉर ऑल द अबंडेंस इन माई लाइफ. मेरे लाइफ में जो भी इतनी सारी चीज़ें हैं इसके लिए थैंक यू. थैंक यू फॉर माई होम, फॉर माई ऑफिस, फॉर माई कार, फॉर ऑल द टेक्नोलॉजी, माई फ़ोन विच हेल्प्स मी टू कम्युनिकेट विथ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, with my business associates. Thank you, thank you, thank you. Thank you for all the money, all the savings, the investments, the bank balance. जो भी है उस सब कुछ के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ. I am feeling so blessed today that I have so much in my life. Thank you, thank you, thank you. फिर से अपने महसूस करें कि आपके परमात्मा आपके सामने ही खड़े हैं. एंड यू वेरी हैप्पी टू सी योर गॉड. एंड यू नाउ गोइंग टू सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड बिकॉज यू नो कि हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है
कहीं ना कहीं हमने उसको बोया था पास्ट में. Whatever we have sown is what we are getting today. So we are seeking forgiveness from God, all of us, all the 160 people on the call, plus their family members, sab milke, we're all seeking forgiveness from God. Dear God, अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो, if we have hurt Mother Nature in any way, knowingly, unknowingly, directly, indirectly, in this life or any of my previous lives, अगर मैंने मदर नेचर को हर्ट किया है तो प्लीज़ 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 फॉरगिव मी एंड प्लीज़ रिस्टोर द वर्ल्ड बैक टू नॉर्मल. अगर मैंने किसी और इंसान को भी हर्ट किया है, नोइंगली, अननोइंगली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इन दिस लाइफ और एनी ऑफ माई प्रीवियस लाइफ्स, अगर मैंने किसी को भी मेरे शब्दों के द्वारा, मेरे विचारों के द्वारा और मेरे एक्शंस के द्वारा, if I have hurt anybody through my thoughts, words and deeds, please forgive me. I'm really, really sorry. Please forgive me. God is very gracious. You can see a beautiful white shining light coming from Him towards you, and it is covering you entirely and washing away all the old karmas. विजुलाइज कि ये लाइट हमारे जितने भी लोग आज अभी यहाँ पे हमारे साथ है, सबके साथ, सबके ऊपर आ रही है और सबके परिवारों में भी आ रही है, सबके घर में आ रही है, completely washing away all the karmas. Visualize that this light is now covering all the 7 billion people. God is very, very gracious, बहुत दयालु है. He's forgiving all the 7 billion people, washing away all the karmas which have created the current problem. And we're all very grateful to God, to Mother Nature, for being so gracious. Thank you, thank you, thank you. Now we're going to do a few affirmations. But before the affirmations, we can also do an appreciation for all the people who are working day and night to restore the world back to its normal position. Genuine appreciation for all the doctors, all the nurses, all the paramedical staff, all the people who are making sure that all the essential services are carried out, all the essential supplies are reached to our homes. वो जितने भी लोग दिन रात मेहनत करके अभी ज़िंदगी चला रहे हैं, हमारी ज़िंदगी चला रहे हैं, सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. A very deep sense of appreciation for each one of them. Appreciate all your team members, your staff, whoever is there supporting you in this time. Be appreciative to each one of them. Wonderful. We will now do a few affirmations. So once again, with a lot of feelings of belief, conviction and faith, पूरे विश्वास के साथ में ये शब्दों को बोलना है. I am always safe and divinely protected. You can repeat after me. I am always safe and divinely protected. My family is always safe and divinely protected. और विजुलाइज करिए कि आपके फैमिली को हमेशा एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको हम कहते हैं शील्ड. इट्स अ ब्यूटिफुल वाइट शाइनिंग लाइट from God Himself, which is protecting you from anything from the outside world. The world, the entire population on the world and the entire human race, the plant kingdom, the animal kingdom and the entire planet is always safe and divinely protected. विजुलाइज करिए कि ये ब्यूटिफुल वाइट शाइनिंग लाइट हमारे पूरे अर्थ को कवर कर रही है. जितने भी लोग हैं वो सारे लोगों को कवर कर रही है. And you can repeat the affirmation.
The entire world is always safe and protected. I know it is a difficult time right now, but I also know and I have complete faith that this too shall pass. And I can see the beautiful days coming. I can see a new world emerging out of this situation. A world which is filled with love, compassion, joy, humanity, helping one another, a loving world. I can see this world emerging right now from this current situation. Thank you, God, for this beautiful world. My financial position is always safe and secure. All my finances are always safe and divinely protected. Wonderful. Now we'll do a few visualizations. We'll do a beautiful visualization that it is early in the morning. करीब 5:30-6 बजे है. आपको बाहर बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही है. It's a beautiful morning. You can see the एकदम हल्के हल्के से सनराइज हो रहा है. आपको दिख रहा है. आप उस ठंडी सी हवा को महसूस कर पा रहे हो. और थोड़ी देर में आप नोटिस करते हो कि पूरा उजाला हो जाता है. बर्ड्स का आवाज़ आ रहा है वातावरण में. और तुरंत ही आप सुनते हो कि डोर की बेल बजती है. और आप अपने बेड में से उठ करके आप थोड़े सरप्राइज हो जाते हो कि अर्ली मॉर्निंग कौन बेल बजा रहा है. इतने दिनों से किसी ने बेल नहीं बजाया. तो आप दरवाज़ा खोलने जाते हो. जैसे ही खोलते हो तो वहाँ पे न्यूज़पेपर पड़ा है. आप न्यूज़पेपर को उठाते हो और उसको खोलते हुए वेरी हैप्पी कि आज न्यूज़पेपर कितने दिनों के बाद आया. और न्यूज़पेपर के पहले पेज को खोलते हो, उसकी हेडलाइंस को देखते हो और आप देखते हो कि वाओ, एक बहुत ही बड़े लेटर्स में लिखा है, फाइनली द वर्ल्ड इज़ नाउ बैक टू नॉर्मल. Coronavirus is completely gone. This is written in big headlines. Visualize the headlines very clearly. You can see the heading, finally the world is now back to normal. Coronavirus is completely gone. और ये न्यूज़ पढ़ करके आप इतने खुश हो जाते हो. आपको अंदर से इतनी शांति लगती है कि आप झूम उठते हो, नाच उठते हो और अपने सारे परिवार के लोगों को ये बताते हो. सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि वी आर नाउ बैक टू नॉर्मल. और सब लोग परमात्मा को थैंक यू कहते हैं. थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग दिस हैपन एंड फॉर हेल्पिंग अस गो थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम्स. और आप अपने परिवार की ओर देखते हो. यू आर सीइंग ऑल योर फैमिली मेम्बर्स आर कंप्लीटली सेफ, फिट एंड हेल्दी. और आप महसूस करते हो कि कितनी डिफ़िकल्टी से आप गुजर के यहाँ तक आए हो. लेकिन एक चीज़ और भी नोटिस करते हो कि जो आपने चाहा था उससे बहुत जल्दी हो गया था. जो भी आपने एस्टिमेट किया था उससे भी जल्दी आज का सिचुएशन आ गया है और आप बहुत खुश हो. और आप खिड़की के बाहर देखते हो तो फिर से वही बज़, द एनर्जी. You can see the energy on the road, the enthusiasm in the people. जितने भी लोग आपको दिख रहे, सब लोग खुश है. चारों ओर सब लोग तालियां बजा रहे, घंटियां बजा रहे, जोर जोर से थाली की आवाज़ आ रही है. It's almost like a huge celebration that together across the planet everybody has got together and made this possible. But this time you see that the world has emerged to be a much more beautiful world, a world filled with love, joy, peace, happiness, compassion, love for one another,
helping one another. टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ गए, प्यार बढ़ गया एक दूसरे में, सब लोग साथ में मिल के काम करने की भावना बढ़ गई। और आप देख रहे हो कि फिर से एक उम्मीद है, आपको दिख रहा है कि सतयुग फिर से आ रहा है। द गुड टाइम्स आर कमिंग, द ब्यूटिफुल टाइम्स आर कमिंग अगेन। यू वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, रेडी टू गो टू ऑफिस। आपके बच्चे भी रेडी हो रहे हैं स्कूल में जाने के लिए, कितने दिनों के बाद जा पा रहे हैं वो लोग भी, वो भी बहुत खुश है, एक्साइटेड है। वंडरफुल। और जैसे आप बाहर निकलते हो, लोगों से मिलते हो, तो आप देखते हो सब लोग बहुत खुश है, सब लोग एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। देयर इज सो मच लव, देयर इज सो मच कंपैशन, देयर इज सो मच हेल्पिंग वन अनदर। You look up to the sky and you are shouting to God, thank you, thank you, thank you so much, God, for bringing our world back to normal and creating a much more beautiful world. A world where everybody is so happy to live in, where Mother Nature is completely protected. Wonderful. Now I will count up from 1 to 10, and as I count up from 1 to 10, you will slowly come out of the deeper levels of your subconscious mind. और जैसे ही मैं 10 पे पहुंचूंगा और आप अपनी आंखें खोलोगे, तो आप पूरी तरह से काम होंगे, पूरी तरह से शांत, पीसफुल, and you will be feeling much better than before, ready to take a beautiful night's sleep. 1, 2, slowly coming out, 3, 4, 5, slowly coming out, 6, 7, 8, 9. You may please rub your hands together. दोनों palms को घिसिए. Put them on your eyes. Feel the warmth of your palms on your eyes. And 10. धीरे से अपने हाथों को अपनी आंखों पे से उठाइए, हटाइए. और जैसे आप रेडी होते हो, whenever you're ready, you may slowly and gently open your eyes. And as you open your eyes, you're completely calm, completely peaceful, feeling much better than before, and ready to have a nice and a beautiful sleep like a little baby. Thank you, thank you, thank you everybody once again for being here on day 5. आशा है कि आप सबको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा आज का भी. आज हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखा. धीरे धीरे एक पॉइंट को हम कवर करते जाएंगे. और मैं एक ऑनलाइन कोर्स बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, तो प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स, टेल योर फैमिली मेम्बर्स. जितने लोगों ने इस कोर्स को अटेंड नहीं किया है, तो आप प्लीज़ उसको अटेंड करिएगा एंड टेक योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल. बी प्रिपेयर्ड फॉर अ ब्यूटिफुल फ्यूचर. Wish you all the best. Anita says, thank you, sir. Sanket says, awesome, sir. Beena says, thank you. Joy says, very nice. All are divinely protected. Ritu ji says, thank you. Ashwini ji says, thank you so much. Prashant says, amazing meditation, feeling superb. Rajni says, thank you for creating this beautiful space. Thank you, Rajni. Nishad is saying, thank you, sir, for the meditation. Ramesh says, awesome experience. Pandurangji says, awesome session. Thank you, everybody. Thank you, thank you, thank you. I'm so happy to have all of you here every evening. And it is indeed my honor and my privilege that God has chosen me to do this work for all of you. It is only God's grace and nothing else.
There are lots of comments coming. Some of the comments are big. I'm not able to see them, but I will definitely answer them after the session. तो आज नहीं तो कल सुबह मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस को आंसर करूँगा. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप अपने कमेंट्स में डाल सकते हैं. Dharini says, thank you so much. Amazing experience. Akshata says, thank you so much. Ashish says, thank you so much, sir. Padmaja says, it's very powerful. Padmaja, जलज को भी गुड नाइट बोल दीजिए मेरे तरफ से. Jayashree says, excellent session, very peaceful feelings. Chandresh Bhatt says, wonderful. Thank you so much, everybody, for being here. And God bless you all. And I will see you soon. I will see you tomorrow night again at 9:30. Please, थोड़ा अपना जो homework है वो करिएगा. Write down what kind of a life you want to live. What is it that you really want to achieve in your life? Okay? उसको आप पूरा डिटेल में लिखिएगा कल, थोड़ा सा 1-2 घंटा निकाल करके. राइट. रत्नाकर जी सेज, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस. थैंक यू. Very good. I'm just going to wait for a few moments. Very good. Thank you, thank you, thank you. Nilesh says, how to find a right goal and purpose of life. I will cover a few things tomorrow, for sure. Pradeep Berry says, how to remain attentive throughout the meditation, feeling sleepy. Not a problem. अगर आप सो रहे हो तो भी आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी. Padmaja says, Jalaj is very happy listening to me. He's a young boy, young little child from Hyderabad. Jigna ji says she has a query. Do meditation, I feel lots of heaviness in my legs. This happens, Jigna ji, because first time when you do meditation and if there is blockages or if you feel energy system में अगर थोड़ा सा भी blockage है तो ये सारी चीज़ें होगी. heaviness feel होगा. कुछ लोगों को सिर में दर्द होता है, कुछ लोगों को कंधों पे दर्द होता है. बट दैट इज़ ऑल गुड न्यूज़, बिकॉज आप जैसे जैसे मेडिटेशन करोगे सारी एनर्जी सिस्टम जब क्लियर हो जाएगी तो आप देखोगे सारा पेन्स निकल जाएगा. तो उसको थोड़ा, जैसे ही कोई चीज़ को हम सफाई करते तो पहले पहले ऐसे लगता है, लेकिन आप करते रहेंगे तो ये सारा क्लीन हो जाएगा. ओके. थैंक यू सैफी सेज, मच नीडेड सेशन. Awesome guys, I've let you go now. It's quite late. So wish you all the best. God bless you all and see you all soon. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.